Look, friends, I must tell you that you know I'm a very emotional person. I am a very emotional person, and when I see these modern bathrooms, my heart cries. Yes, because there's no soap in the bathrooms these days. Seriously, all of you, don't look at me like, brother, where are you staying? There is soap, sir, there is soap. But it's not that Bata soap. Remember that? Solid Lux Lifebuoy. Remember Lifebuoy? Just hit me on the head and my head will burst. Remember Lifebuoy, which flows down the drain? Stop it. And then mom says, wear a bag in your hand and take it out. I know not everyone understands the one with the bag in your hand. But the one who does understand it, that person has grown from the grassroots level. Because he wore a bag in his hand, lay down near the drain, and put his hand in, mom, and I can't get it out. There is soap in the bathroom, but it's only in liquid form. It's only in liquid form. Sit down to take a bath. Have you noticed? People used to scrub their entire body with 1 bar of soap. Now, there's a new container for washing every part of the body. Sit down to take a bath, and you have to sit with 4 containers. And what all should I wash separately? I'm sitting down to take a bath. Opening the container here. Do you have face wash? Wash your head separately, your chest separately, and your armpits separately. Really? This product has come out in the market. It's for whitening your underarms. Yes, brother, it's come out. It's for whitening. Who's this obsession with whitening? When did you think I'd go this far? Who's doing this? Who's doing this? Who's this guy who goes to meetings and says, brother, great. Come on, deal done. Let's get the deal done. Come today. We'll just fight like this, arm in arm, and that'll be fun. I'll only issue the check after that. Come here, fight. Who's doing this, man? Is this going too far? This one's t-shirt rides up a bit. It's a good view. Sorry, ma'am, sorry. Now you had to see it. You'll remember it. You'll never forget it. And I've got a slight belly, you know? I mean, it's not too much. Not like a transformation. But enough that all my shorts have their straps blown out in the middle. Relatable content. Relatable meaning if I wrote, jockey, from here to here. All the jockeys are in this condition. I don't know if someone just cut the middle of the jockey like that. The underwear is always folded. No, go to the bathroom every time. How does something new come up, man? There's one in the bathroom. Have you seen bum cream? You guys, know bum cream. How many people don't know? Many won't know. You'll understand from the name, right? If it's bum cream, it's not meant to be applied on the face. As far as I'm concerned, isn't it? When in evolution did humans think that our butts also need cream? When did humans think that one day, standing naked in the bathroom, cream in hand, we would do this in our butts? We were born for this, to do this. This side was not visible. Look, this is happening. Who thought? We cannot control ourselves. Everything is different, brother. Everyone's eyes are different. Some have normal eyes, some have hairy eyes. Brother, a different whirlpool is forming, a new thing in the bathroom every time. My question is, how can something new come up every time? Have you seen a loofah in the bathroom? You guys, know what a loofah is? Who doesn't know? Raise your hands, raise your hands. Brother, I don't know. Brother, I don't know. Brother, well done, well done. And it's not like that. All 4 of you have never seen a loofah. Now, it's in your house, so you've heard of it. You've seen it hanging on the bathroom faucet. It's not flower-like. It's not the body's Scotch Brite. Have you seen it? Haven't you? Oh, have you seen this? This is also a magic show. Brother, he drove the pigeon out of the backyard. Kapoor Dada had a parrot. He brought parrots of every color. You know, for 3 years, I don't know what's been in my house. I swear, I had no idea. I thought my wife was fond of decorating the house. So she even decorated the bathroom faucet. It hangs on the faucet, right? It's like that. So one day, I noticed it. I mean, I've seen it every day. Today, it occurred to me, what is it? So, I went and looked. It's a rough, net-like texture. So I thought maybe my wife bought it for cleaning my heels. Because everyone remembers the old houses. Do you all remember the struggles? Remember the rough ground? Remember, scrub it here. Here in Mongol Bazaar, that used to come, but not the stone,
just scrub it. Now everyone has installed tiles, so I thought maybe my wife brought it to clean my heels. The next day, sir, for the first time, I cleaned my heels with a loofah, and I swear, they were so beautifully clean. It was fun. I felt like cutting my heels off and putting them on my face. So beautiful, so beautiful. They were like cracked cream heels, absolutely beautiful. So now I've been cleaning my heels with a loofah for 3 months. This is the context of this joke. Now it'll begin. So that day, sir, I was in the bathroom, bathing naked, polishing my loofah, forgetting everything else. Come on, brother, I don't know what sins from my past lives have come to light. What mistake did I commit? Sir, I forgot to lock the door. Brother, my wife suddenly opened the door and entered. At first, I was worried that I wasn't making a vlog of this. I hope I don't make a vlog of this. Hey guys, look, he's been caught naked. Look, friends, even after zooming in, it's barely visible. Look, zoom, zoom, zoom. Even after zooming, it's barely visible. Hey guys, he has a camera in his hand, he can say anything. And sir, he must have been caught naked in such a dirty, deplorable situation, right? You know, a person should never be caught naked, sir. Being naked requires both the parties' consent. Getting caught is the only thing that shocks others. What have you seen? You were so dirty, you should sit on the ground. Your entire belly is piled up. It doesn't happen that sometimes, when you sit down, the entire flower doesn't settle down. Hey, where did it go? I don't know. The entire flower looks like it's completely kneaded. He's cursing himself. He ate too many momos. He's too full. My wife was completely shocked to see me, because we've never seen each other under bright lights. I mean, we have seen each other sometimes, but normally, Indian couples don't see each other under bright lights. We don't have that culture of watching, and after seeing, we did it. Our bodies are in such a state. What will we do? Let's touch the ass. Come on. Let's play with the belly. Come, knead and seal it, you bastards. My wife was completely shocked to see me. What is she saying? And as soon as she asked me, what is she saying? I didn't realize initially that she was talking about a loofah, because I was naked. And brother, when so much water is filled, a boy shrinks, brother, you know. There's nothing to be embarrassed about. So I thought she was talking about something else. So when she asked me, what is this? I got completely defensive and said, is this it? And she said, what are you doing with this loofah? I said, what's a loofah? She said, you have it in your hand. I said, it's a broom. It's a broom. I've been checking it every day. Brother, I haven't told you what I've been doing with it for the past 3 months. I haven't told you, sir, what have I been doing with it for the past 3 months? Because it's been there every day. I came to me and put shower gel on it. I didn't tell you. I've been cleaning my head with it for 3 months. And I even cleaned the wash basin twice. And just to let you know, those who don't know, friends, you don't know, sir, you don't know. This is a net loofah, the one with the net. Okay, there's a similar product in the kitchen, made of iron. That's not a loofah. Don't rub it with shower water. Otherwise, you'll be caught by the metal detector at the airport your whole life. PPP, it's metal. It goes in and stays in. My question every time is, how does something new come into the bathroom every time? A new thing comes into the bathroom every time? Have you seen that V-wash? Quote, you guys know what is V-wash. Who all don't know? Raise your hands. Raise your hands. Well done, men. Well done. Well done. Raise your hands, brother. There's nothing to be ashamed of. Ma'am, you don't have to tell her. Raise your hands, brother. You are the honest person. I am telling you. There are at least 10 more people sitting here. Tell me who doesn't know. Everyone else knows. Tell them everything or I will look you in the eye and catch you. His head is laughing. Very generic information for you guys. Okay, firstly, we wash does not mean that we all wash together, okay? I've invited a few friends tomorrow. Come on brother, open the door. All the brothers will wash their hands today. Single quote, we wash is basically for women. It's for intimate hygiene. It's for vaginal hygiene. Do you understand? There's a separate section for girls to wash. And nothing for boys. Will we keep rubbing soap all our lives? Dude,
What's this about maintaining health in life? And man, last time I was taking a bath with 4 cans. While bathing, I got confused with 1 can. Maybe I didn't pay attention to that can. And man, I accidentally washed my face with the washcloth. My whole mood is ruined. I said, is this the punishment? Is this the punishment to never go down in my life? Quote. I know half the people didn't understand. They didn't even notice. These 2 guys have it all over their faces. What, brother, go down. Why are they laughing? Are they talking about something warehouse related? Quote. But these 2 didn't understand. And I saw that couple in the dark behind. The girl said to the boy, you know, my Chaman Chator. Did you think they were talking about Chad and Patrick here? This one is very dirty, man. You shouldn't call anyone Chaman Chator. And you know what is the first thing about this joke that now you will remember me? In one of the weirdest moments of your life. Now I will be there. Now it is always going to be a 3, sir. And I know exactly where I will go, and remember you know exactly where I will go, and remember when exactly the atmosphere is in the Chaman Chator. Yes, you are the Chaman Chator. I've been married for about 7 years now. और काफी टाइम तक मैंने और मेरी वाइफ ने बच्चा नहीं करा था. मतलब मैंने तो नहीं करा था, मेरी वाइफ ने भी नहीं करा. नहीं कि मैं कर लूं और वो ना करे. तो आपको हमने 4 सवाल और नहीं आ जाएंगे कि गौरव भाई कॉमेडी हटाओ, इधर आओ पहले आप. हम आपसे 2 बातें और करना चाहते हैं. और यार हम लोगों ने ना बच्चा इसलिए नहीं करा क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी हमने डिस्कस करा था हम लोग बच्चा नहीं करेंगे. हम लोगों ने सोचा था हम लोग बनेंगे डिंग्स. You guys know DINGS? It's a double income no kids concept, right? Wherein a couple decides कि अपनी जिंदगी बेटर करेंगे, दुनिया घूमेंगे, वो सब नाटक उसके अंदर पूरा आता है. तो मैं सालों से DINGS वाले जोन में चल रहा हूँ. अभी 2 साल पहले मेरी बीवी ने पलटी मार दी. हाँ, सडनली मेरे से कह रही हाँ जी बच्चा. हाँ जी किसका बच्चा? अरे हमारा बच्चा. हमारा बच्चा तो है ही नहीं. कह रही वही कह रही हूँ बच्चा करना है. मैंने कहा अरे ऐसे कैसे बच्चा करना है? हम लोग तो DINGS है. मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कुछ लोग कंफ्यूज्ड है. दोस्तों डिक्स नहीं, मुझे ना कुछ लोग की आंखों में दिखाई दे रहा है कि ये पति पत्नी दोनों डिक बनेंगे. क्या हो गया है समाज को? किस दिशा में समाज आगे बढ़ रहा है? डिंग्स इज डबल इनकम नो किड्स. ओके, एंड आई गिव लॉजिकल रीजंस टू माय वाइफ दैट व्हाई आई डोंट वांट किड्स. मैंने उसे बोला यार कि मेरे को एक जगह बहुत घूमने का शौक है. पता है आपको माचू पिचू करके जगह साउथ अमेरिका में? सुना आप लोगों ने माचू पिचू? भाई गाली नहीं है, कहीं 2-4 गाली है क्या ये? माचू पिचू साउथ में जगह. मैंने कहा माचू पिचू तो कहीं नहीं आज तक. कह रही माचू पिचू नहीं है, मुझे घर में कुछ कुछ चाहिए. तेरा हो गया नाटक, दुनिया घूमने वाला, बच्चा करेंगे बैठ करके. और उसके बाद से मुझे हर जगह से प्रेशर आ रहा बच्चा करेंगे, हर जगह से. मेरी मदर इन लॉ साथ में रहती हैं. एक तो मदर इन लॉ साथ की रहती हैं. मैं बता रहा हूँ अब मुझे इस देश की बहुओं के साथ आ चुका हूँ. मुझे समझ आया बहुओं और सास की क्यों नहीं बनती. मुझे लगता है कोमोलिका इतनी गंदी औरत भी नहीं थी. घर में कुछ कलेश तो सास भी करती ही होगी. नहीं, शी माय मदर इन लॉ शी इज अ वेरी नाइस लेडी. पर हमेशा वो नहीं रहता, हमेशा क्यों नहीं बोल रहा था घर में, हमेशा घर में क्यों. आप मेरे को जज मत करो यार, कंबाइंड जज कर रहे हो. हरामी है ये का तो बदतमीज ही है. अच्छी है ऐसी बात नहीं है. और उस दिन सुबह 1.5-2 साल पुरानी बात है. सुबह 6 बजे गया हूँ किचन में गर्म पानी पीने के लिए. 6 बजे मेरे से बोल रही उठ कर, कह रही कब करोगे तुम लोग बच्चा? ये कोई टाइम है? सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त बच्चा करूँ मैं यहाँ पे? कौन करता है सुबह 6 बजे? ये प्रेशर आप शाम को 7-8 बजे के बाद दो ना. इंसान तो वाइन लगाए, माहौल बनाए, लगे काम पे लगे. सुबह 6 बजे कौन बच्चा करता है? और उनकी खुद की बेटी सो रही है, किसका करूँ बच्चा मैं इस टाइम? क्या करूं मैं बच्चा? मुझे तो भाई एकदम उनपे ऐसा गुस्सा है. मैंने उनसे उस टाइम आई कांटेक्ट बना के बोला. मैं कहा हो नहीं रहा मेरे से. मैं बता रहा हूं चलेगी, शौक में ही चलेगी. अरे क्या बोल रहे हो?
मैं कहा कर रोज रहा हूं, हो नहीं रहा। उसके बाद 4 महीना मुझे कुछ नहीं बोली है। अपनी बेटी को ही बोल रही तुम्हारा पति बदतमीज है एक नंबर का, जब देखो उल्टी सीधी बातें करता रहता है। और यार फिर मैंने और मेरी वाइफ ने डिस्कस करा क्या करें, राइट, बिकॉज इट्स अ वेरी म्यूचुअल रिलेशनशिप, राइट, यू हैव टू बी कंसिडरेट ऑफ ईच अदर इन मैरिज, राइट, यू हैव टू टॉक टू ईच अदर इन मैरिज। सो आई टॉक टू हर, मैंने कहा यार क्या करें। कहती यार लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ आवर लाइफ, वी विल आल्सो एंजॉय पेरेंटहुड, कुछ नया हो हमारी जिंदगी में, कब तक दूसरी की शक्लें देखते रहेंगे। मैं कहा वो तो बच्चे के बाद देखेंगे ही ना। कह रही पर कोई एक तीसरा भी तो रहेगा ना देखने के लिए। मैं कहा ठीक है भाई, अगर इतना डिस्कशन हो गया तो बच्चा कर लेते हैं। भाई मैं आपको बता दूं 1-2 दिन का काम नहीं है ये, रोज की दिहाड़ी है। वो सिर्फ बॉर्डर पिक्चर का सुनील शेट्टी था। जो 1 दिन में करके चला गया था। भाई से तो आया था शक्ति। नहीं भाई सही में इतना आसान नहीं भाई, बच्चा 1-2 दिन में, रोज की दिहाड़ी होती है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हमने करा मैम 3 महीने ट्राई करा, बच्चा हो गया ना राजी। और मेरी बीवी मेरे पे चढ़े मतलब उल्टा बोले। ये नहीं कि यहाँ पर अलग ही चीजें विजुअलाइज करके बैठे हो, ऐसे इस वाले से नहीं होता है। अगर कोई ट्राई कर रहा है बता दूं, ये वाला तो कभी ट्राई मत करना, ये बच्चा बुच्चे के लिए नहीं है, ये तो जिंदगी के मजे के लिए है। हमने करा भाई 3 महीने ट्राई कर, हो गए ना राजी। नहीं सही मैंने लास्ट में जोक करा, फ्रंट और बंद कर, भाई इस वाले से हो जाएगा। करा भाई 3 महीने ट्राई, भाई बच्चा हो गया ना राजी। और मेरी बीवी मेरे को डांटे जाए, तू नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैंने कहा मैं कैसे नहीं कर रहा। मैंने कहा मेरा तो मोड ऑफ अटैक मोटिस ऑपरेंडी एग्जैक्टली सेम है, जो मैं सालों से कर रहा हूँ मैं भी कर रहा हूँ। मेरी बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं कहा चलो यार डॉक्टर के पास चलो, क्या दिक्कत की बात है। तो हम लोग गए भाई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने सब कुछ समझा, हिस्ट्री विस्ट्री पास्ट वगैरह लाइफस्टाइल वगैरह सब कुछ समझा। 1 घंटे बाद में घुमा कर डॉक्टर मेरे पे ही आ गई, यानी गौरव आप ना स्ट्रेस में हो। मैंने कहा मैम 1 रुपए का स्ट्रेस नहीं है मुझे, मैं रोज मजे मारता हूँ। मैंने आपको बता देना मैं कितने मजे मारता हूँ, आप स्ट्रेस में आ जाओगे। यानी गौरव आपको पता नहीं पर आप स्ट्रेस में हो। पता है डॉक्टर ने मुझे क्या स्ट्रेस दे दिया कि मेरा स्ट्रेस क्या है यार। नहीं यार गायनेकोलॉजी में साइकोलॉजिकल इशू दे दी यार। मेरा ये सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि मेरा दिमाग क्यों खराब हो रहा है। तो मैंने बोला फिर क्या करें मैम, क्या करें। कह रही नाउ यू विल हैव टू प्रॉपर्ली प्लान अ किड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट प्लानिंग अ किड। कल तक जो एक्टिविटी प्लेजर थी आज प्रोजेक्ट कैसे बन गया है। हमें इसमें से रिजल्ट्स क्यों चाहिए आज। और पता है पहले तो डॉक्टर डांटी हैं, उनके अंदर की मां निकल आई पता है बाहर अचानक से। कह रही सही टाइम पे तुम लोग करना नहीं होता है, दुनिया घूमेंगे नाटक करेंगे, मार्च पीछे जाओगे तुम। नहीं जाएंगे बताओ तो क्या करें। व्हाट इज प्लानिंग अ किड। सो शी सेड कि नाउ यू विल हैव टू प्रॉपर्ली प्लान अ किड। सो यू नो शी गेव अस डेट्स। यू गाइस नो डेट्स। पता है आपको चैतन्य यू नो खजूर नहीं मिले वहां पे कहीं, अगर कोई सिंगल लोग आए खजूर मिले क्या भैया। डेट्स मतलब तारीख, डिपेंडिंग ऑन पीरियड्स एंड साइकिल शी गेव अस डेट्स दैट नाउ यू हैव टू ट्राई बिटवीन दिस डेट एंड एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अ डे। भाई मैंने तो मना कर दिया, मैं सीधे हाथ खड़े कर दिए। मैं कहा मेरे से नहीं होगा 3 बार। भाई हमारे अंदर मेरे अंदर कोई फालतू का माचोइज्म नहीं है भाई। नहीं हमको इंसान की मोटर लगा रखी है यहाँ पे। 3 बार कोई भी नहीं करता भाई, कोई भी नहीं करता 3 बार। ये मलयालम पिक्चर विलन ने भी नहीं करा 3 बार। नहीं होता भाई, मैक्सिमम 2 times 4 hours गैप, दैट्स इट। 3 बार होता था जब आप 22 साल के, तब होता था 3 बार, क्योंकि पता है 6 महीने तक कमरा अवेलेबल नहीं है। तो आज ही मैक्सिमम ROI निकालो इसमें। तो मैंने तो मैम मैं 3 बार नहीं। और ये थॉट इतना अनकंफर्टेबल नहीं है। अब कोई थर्ड पर्सन डिसाइड करेगा हम लोग कब करेंगे। सोच रहे आज आप घर पे कर रहे हो, थर्ड पर्सन को पता है मचाया जा रहा है, बॉल सेट है घर पे। और यार मेरी ट्रैवलिंग जॉब है यार, उन डेट्स में कहीं पर मेरा ट्रैवल पड़ जाए, और किस्मत ऐसे ढंग का ट्रैवल मिले ही ना यार। जैसे मुंबई पुणे बैंगलोर गोवा ये सब सिटी मिले, इंसान शायद शाम को तो वाइन लगाए, माहौल बनाए, लगे काम पे लगे। पता है कहाँ झारसुगुड़ा में जाकर शो करा मैंने।
पता है आपको झारसुगुड़ा कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, छोटी सी जगह है, उड़ीसा में पड़ता है। वहां से 1.5 घंटा दूर IIM संबलपुर, वहां शो मिला था मेरे को। कोई गलत बात नहीं है वहां जाने में, पर आप सोच रहे हो घर से मैं और मेरी वाइफ पैकिंग कर रहे हैं, ये सोच के कि आज झारसुगुड़ा में करेंगे। नहीं सही बता रहा हूं यार। और हमने करा, और डॉक्टर 1 मेरे से फॉलो अप कर रही है। ये कोई फॉलो अप करने की चीज है क्या? फॉलो अप चल रहा है। कह रही गौरव करा आपने आज? एक बार तो मैंने वीडियो कॉल ही लगा दी, मैं लो देख लो मैम। मैम वर्टिकल कर दूं? वर्टिकल सही आ रहा है वाला? ये वाला एंगल सही है क्या? नहीं सही में यार। भाई हमने फिर करा 3 महीने ट्राई, भाई बच्चा फिर 9 कह रहा जी। एक तो ये बच्चा होने से पहले इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? जब माँ बाप इतनी मेहनत करे तो हो जाना यार। क्या नाटक लगा रखा है, मेहनत कराया जा रहा है यार बिना बात के यार। और मैं बता रहा हूँ जब आपको डॉक्टर डेट दे तो करना पड़ता है, तब वो सब नाटक नहीं चलता। आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, आई एम टायर्ड टुडे। डेट मिली तो करना। आपको समझ नहीं आ रहा कितना डिफिकल्ट है ये। मान लो एक कपल है, कपल में अगर एक का मन नहीं है तो दूसरा करवा देता है ना कि इन आँखों की मस्ती मस्तान। समझ लो जब कपल में दोनों का ही मन नहीं है, दोनों का ही मन नहीं है, दोनों आज यार कर लेंगे यार, कर लेंगे आज हो जाएगा यार। भाई बिल्कुल प्रोजेक्ट की तरह ही करना पड़ता है, मैं बता रहा हूँ आपको यार। नहीं सही में यार करा भाई हमने, फिर करा 3 मिनट, भाई बच्चा फिर 9 कह रहा। और मेरी बीवी मेरे ही बम्बू दिया, तू नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैं कैसे नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूँ। मैं कहा मेरा तो सबूत है। अरे बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाएंगे दोबारा। चलो दोबारा चलो, क्या दिक्कत है, दोबारा चलो। तो हम दोबारा गए गायनेकोलॉजिस्ट के पास, हमने सब कुछ कह रही इट्स ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट पैनिक, इट टेक्स सम टाइम, लेट्स डू वन थिंग राइट नाउ, लेट्स डू कपल ऑफ टेस्ट राइट नाउ, लेट्स सी वेयर वी आर राइट नाउ एंड देन वी विल टेक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। मैं कहा ठीक है, मैं बता दो क्या क्या टेस्ट कर लेंगे। कह रही इनका एक्स टेस्ट होगा और गौरव आपका स्पर्म टेस्ट होगा। मैं कहा मिल जाता ब्लड सैंपल से। कह रही कॉमर्स ली थी ना आपने? विदाउट मैथ्स, आर्ट से भी नीचे। कह रही गौरव आपको प्रॉपर स्पर्म सैंपल देना होगा। ले लो। कह रही कब दे सकते हैं आप? अभी ले लो। कह रही आप लोगों ने लास्ट टाइम ट्राई कब करा था? तो भाई मैं और मेरी वाइफ साथ साथ ही बैठे थे, ओ मेरे से पहले ही बोल पड़ी यार बिना डिस्कस करे। कह रही मैम भाई 6-7 दिन पहले डेट थी तभी ट्राई करा था, उसके बाद तो इसने भी कुछ नहीं करा, मैंने भी कुछ नहीं करा। ट्राई नहीं करा बिकॉज ट्राइंग इज अ कंबाइंड एक्टिविटी। कुछ नहीं करा इज अ पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। कुछ नहीं करा कुड बी एन इंडिविजुअल डिसीजन। अब मैं क्या ही बोलता, ये तो बोल पड़ी है। मैंने कहा हाँ जी मैम जो ये बोल रही है वही। डॉक्टर तो एक्सपीरियंस्ड है। किसी बहाने से मेरी वाइफ को बाहर भेजा, रूम में मैं और डॉक्टर, अनकंफर्टेबल माहौल, दोनों को पता क्या बात होने वाली है। डॉक्टर कह रही गौरव यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी, ओके, बिकॉज दिस फॉर मेडिकल यूज, यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी, you cannot lie, okay, because we need to run test on this. Tell me Gaurav, when did you masturbate last time? मैं कहा मैम आने से पहले। आपने तो बोला था स्ट्रेस है। अब मैं दिमाग से स्ट्रेस हटा के घर से निकलता हूँ कि अगर मेरे मन में 4 थॉट चल रहे, पहले मैं कहता तू हट, इसके बाद दिन प्रायोरिटाइज करेंगे। कह रही गौरव इट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट इज वेरी नेचुरल, सो यू कांट गिव योर सैंपल टुडे बिकॉज वी नीड फ्रेश सैंपल। फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस फ्रेज फ्रेश सैंपल। यू गाइस नो व्हाट इज फ्रेश सैंपल? फुल क्रीम नो टोन्ड। सबका मूड खराब करके भेजूंगा आज। घर जाके सबकी चाय दूध छुटवा दूंगा, देखना। घर जाके चाय पियोगे, लैक्टोज इंटॉलरेंट है भाई, सब डेयरी प्रोडक्ट सब हटा दो यहाँ से। It has to be fresh sample, Gaurav. So you have to come after 6 days and then we can take your sample. But make sure you practice abstinence for 6 days. मैंने कहा ओके मैम, I will come after 6 days of abstinence. तो भाई पहले तो मैं रूम के बाहर निकला, मैंने गूगल करा व्हाट इज abstinence.
So abstinences, you have to control your sexual urge. You have to control your sexual urge for whatever time doctor tells you for, and after that you can go and give your sample. अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है जब कोई आपके मना करे आपके ज्यादा चुल्ला काटता है, तो मैं फोकस कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 4 दिन 5 दिन भाई मैं वर्कआउट वगैरह कर रहा हूँ जबरदस्ती का, दिन के बाहर घर के बाहर घूमे जा रहा हूँ, किसी भी हालत में अपने आप को अकेला नहीं पढ़ने दे रहा। अकेले पढ़ती होता है भाई, गांड वरना तुम्हें साथ में तो थोड़ा करोगे भाई, बैठ 2 बैठ जरा मैं कर लेता हूँ। जब अकेले हो तो तभी होता है, मैं अकेले हो ही नहीं रहा, कोई जहाँ घर कमरे में कह रहा हाँ मैं आ रहा हूँ भाई ये सब कर रहा हूँ। 5वें दिन मेरा शो बढ़ गया मुंबई में यार, और शाम का कंपनी का शो था, किसी कॉर्पोरेट शो, 5 बजे का शाम का शो है, गया हूँ सुबह होटल में 11 बजे अर्ली चेक इन मिल गया है। अब मेरे पास 6 घंटा खाली पड़ा है, 1 रुपए का काम नहीं है मेरे पास भाई, 1 अठन्नी का काम नहीं है मेरे पास, ऐसे लेट के दीवार देख रहा हूँ, दीवार देखे जा रहा हूँ। अब देखो मुझे लड़कियों का नहीं पता क्या सीन होता है, पर यहां जितने भी लड़के बैठे हैं इंक्लूडिंग पबजी बॉय, शरीफ बॉय, कैफे ओनर एंड रिच मैन, मैं बता रहा हूं मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट डू इट बिकॉज दे आर हॉर्नी, दे जस्ट डू इट बिकॉज बैठे बैठे बोर हुआ करना है कुछ काम, कि पहले ये तो निपटाओ यार, माइंड में क्लैरिटी लेके आओ यार। ऊपर से भाई मेरे को क्लाइंट परेशान करे जाए यार, सब दिन भर बोरिंग सेशन है, एवरीवन इज वेटिंग फॉर योर शो ओनली, आप ही मजे दिलाओगे भाई, इतने स्ट्रेस में मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ वहाँ पे। तो मैंने कहा पहले तो स्ट्रेस रिलीज करो, हटाओ। 5 बजे कर सकता, मैंने तो 4 बजे कैक खत्म करो, निपटाओ कर दिया भाई, मैंने कर दिया। मैंने कहा बच्चे कर देंगे, आज क्लाइंट जरूरी है मेरे लिए भाई साहब। 5 बजे जाकर शो करा, वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑफ माई लाइफ। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर शो के पहले मेरा प्री शो रिचुअल है, नहीं कहीं आपको लगे ओ इसीलिए 15 मिनट लेट शुरू हुआ है, ये मेहनत कर रहा था हमारे लिए पीछे। भाई शाम की फ्लाइट ले घर पहुंचाओ, मैं रात को घर घुसा 11 बजे, घर में घुसते ही पता नहीं मेरी शक्ल भी दिख जाता है, क्या हो जाता है भाई, मेरी वाइफ ने घर में तू करके आ गया ना भाई, क्या ही झूठ बोलता, मगर एक बार हो गया, लेकिन हो गया क्या होता है। और पता वो इस सिचुएशन में कुछ भी कर सकती थी, मेरे से लड़ाई कर लेती भाई, झगड़ा कर लेती, कलेश कर लेती, नो रेगुलर नाराज हो जाती। पता है क्या करी, डॉक्टर को बता दिया भाई, मैं 35 साल का आदमी हूँ यार, मैं बचपन से कर रहा हूँ, मैं आज तक नहीं पकड़ा गया, इसने मुझे पकड़वा दिया यार। और ये कोई डॉक्टर को बताने की बात है क्या, और कुछ भी लिखती है मैम, ही इज बिजी, आई एम बिजी, वी कांट कम टुमारो, यू नो व्हाट शी रोट टू डॉक्टर मैम, गौरव मास्टरबेटेड टुडे। कोई ये लिखता है क्या डॉक्टर को यार, जिंदगी भर का स्क्रीनशॉट दे दिया डॉक्टर को हमेशा। And you know our doctor she's basically an IVF specialist, okay, she's a fertility specialist, I'll tell you more about it later on, okay. So they get involved with the patients, so doctor called her 11:30 PM, doctor called her, can you put me on speaker right now, मैं कहा डाल मत देना भाई, डाल दी स्पीकर पे, डाल दी, पता मेरी बीवी मुझे भाई एकदम तख्ते ऐसा लगा कोयले पे फेंक दिया मुझे उठा कर, कह रही मैम सुन रहा है बोलिए, भाई सामने से डॉक्टर, गौरव आप सुन रहे हैं, गौरव मुझे पता है आप सुन रहे हैं, मैम हाउ हैज बीन योर डे, हाउ आर यू मैम, अरे गौरव मैम ने आपसे हालचाल पूछने के लिए फोन करा इस टाइम, आपसे एक दिन कंट्रोल नहीं हुआ, गौरव आपने ऐसा क्या देखा, क्या आपको इतनी जरूरत पड़ गई, क्या देखा आपने ऐसा, मैं कहा मैम वहां दीवार थी, भाई मुझे भी यही लगा कि जोक मार के टेंशन रिलीज करूंगा, पता है डॉक्टर चिल्लाई है मेरे पे, कह रही आपको मजाक लग रहा है सब, यू थिंक दिस इज ऑल फन, वी प्लान्ड अ प्रॉपर डेट नाउ शी हैज मिस्ड इट वन मोर टाइम, शी हैज टू वेट फॉर 6 more days, वी आर ऑलरेडी रनिंग लो ऑन टाइम, आपको मजाक लग रहा है सब, भाई डॉक्टर डांट रही है, पता मुझे भाई, मुझे डॉक्टर से डांट खाने में दिक्कत नहीं है, पर आप सोच रहे हो मैं किस टॉपिक पे डांट खा रहा हूँ, ये कोई डांटने की बात है। और फोन रखते टाइम मेरे को बोली है, ओके गौरव सो यू कांट कम टुमारो एंड गिव योर सैंपल वन मोर टाइम, यू हैव टू वेट फॉर 6 more days एंड आई एम टेलिंग यू, डेयर यू टच इट, मैं हाथ कटवा लूंगा,
मैं होने नहीं दूंगा, कुछ होने नहीं दूंगा। उसके बाद भाई 6 दिन मेरी हिम्मत नहीं, मैंने नहीं करा 6 दिन। एक दिन मेरा हल्का मन करा, ठंडा पानी मारा मैंने खींच। मैं बता रहा हूं भाई, ज्यादा मन कर ठंडा पानी मार दिया करो। सारे शुक्राणु जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं भाई, हफ्ते बाद वापिस आएंगे भाई, बाय। नहीं आएंगे भाई, इतना ठंडा मत मारा कर, हमें डर लगता है भाई, हमें ठंडे की आदत नहीं है भाई इतने। 6 दिन बाद गया डॉक्टर की क्लिनिक में घुसा हूं, डॉक्टर की आंखों में था। मैंने कहा आई स्वेयर आई हैवंट डन इट, इनफैक्ट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे ओनली। मैं तो सैटरडे से एक्साइटेड हूं कि थर्सडे को मजा आएगा। So you ready to give you a sample? मैंने कहा I've been ready throughout. Tell me where I have to give. Just tell me where I have to give the sample. कह रही ठीक है, कह रही सिस्टर इनको कंटेनर दे दो। मैंने कहा आप सिस्टर को क्यों बता रहे हो? आप पूरे हॉस्पिटल में ढिंढोरा पीट दोगे क्या कि शहंशाह हिलाने आए हैं आज? ये कोई बताने की बात है यार? आधे हॉस्पिटल को पता मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे। बिलिंग वाला बंदा देख के हंस रहा है, मजा आएगा आज तो। कह रहा है व्लॉग बनाना, आज व्लॉग बनाना, हम भी देखेंगे। जब भूतने का व्लॉग बनाना, मैंने कहा ठीक है भाई, देख खत्म करो भाई। उसने मेरे को डब्बी सी दी है ऐसे, मैं वो जाके वेट कर रहा हूँ, उन्होंने रूम बना रखा है। मैं कहा ठीक है भाई, मेरा नंबर है, देखे खत्म करूँ। कोई होगा बंदा मेरे अंदर मेरे से पहले? भाई दरवाजा खुला, बंदा निकला, अरे गौरव भाई बिग फैन। पता है हाथ में ऐसे डब्बी लेके पकड़ा। थैंक यू। कह रहा एक फोटो हो जाए क्या? भूतनी का पागल हो गया क्या? ये कोई फोटो लेने की जगह है क्या? ये फोटो ले, यहाँ कोई फोटो, ये पूछ भी कैसे सकता फोटो ले ले यहाँ पे? भाई दिल्ली के लड़के सबसे बड़े बदतमीज होते हैं, मैं बताऊँ, इनसे बड़ा बदतमीज कोई नहीं है दिल्ली के लड़कों से बड़ा यार। एक बार नहीं माना भाई, उन्होंने फोन निकाला, फोटो मार दिया। पता क्या फोटो आई है? यहाँ वो खड़ा है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, पीछे दरवाजे पे लिखा सीमन कलेक्शन। ये फोटो आ गई भाई, कहीं इसके फोन में गई ये फोटो। और पता जाते टाइम क्या करके गया? वो अपनी डब्बी तो सैंपल दे के आया था, मेरी डब्बी कह रहा चीयर्स भाई जाओ। मेरा जिंदगी भर का चीयर्स खराब कर दिया यार। मैं कहा ठीक है भाई, आइडियली दिस शुड बी द मोस्ट स्ट्रेसलेस सैंपल ऑफ माय लाइफ, दिस इज बिकमिंग द मोस्ट स्ट्रेसफुल सैंपल। मैं कहा ठीक है भाई, देखे खत्म करो, इतने दिन हो चुके हैं। मैं अंदर रूम में गया हूँ, मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी वैसा रूम नहीं होता। आप सोचो विकी डोनर वाला बिल्कुल नहीं होता है, काउच वाउच लगा है, पूरा टीवी सब माहौल कुछ भी नहीं है। ऐसे हॉस्पिटल वाला बेड था और सामने दीवार थी। अब खैर दीवार को तो मेरे लिए तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट थी। मैं कहा ठीक है भाई, इतना दिन हो गए, देखे खत्म करो भाई। भाई मैंने सैंपल देना स्टार्ट करा। हंसो मत यार, वापस मैं सैंपल दे रहा हूं, मुझे अच्छा लगना स्टार्ट हुआ, मुझे और अच्छा लगा, मुझे और अच्छा, मुझे इतना अच्छा लगा मैं सैंपल डब्बी में देना ही भूल गया। मैंने वहीं दे दिया जहां सालों से जा रहा है, जमीन पे सैंपल पड़ा हुआ है। मैं नीचे देख रहा हूँ भाई, डॉक्टर चपलों से मारेगी मेरे। तो मैंने करा नहीं, पर मेरे मन में थॉट आया, इट वाज जस्ट अ थॉट, नोबडी विल जज मी ऑन दिस, ओके, नोबडी विल जज मी, इट वाज जस्ट अ थॉट। मैंने करा नहीं है ना, मैंने कहा डब्बी को ना इकट्ठा करके दे देता हूँ। और कितना अजीब नहीं होगा, कल को सैंपल की रिपोर्ट आई, डॉक्टर कह रही गौरव स्पर्म काउंट तो ठीक है आपका, पर हल्की ना किरकिरी निकली है। किरकिरी निकली है, कह रही हाँ डस्ट पार्टिकल्स आ गए हैं। डस्ट पार्टिकल्स कैसे आ रहे हैं सैंपल में? मैम पता नहीं मैम, कोई पथरी तो नहीं टूट गई? मैंने कभी 6 दिन गैप दिया नहीं है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। कोई पथरी का देसी इलाज तो नहीं निकल गया ये? 6 दिन बाद करो पथरी खत्म, जड़ से खत्म। I don't know man, I don't know. Okay, I'll tell you something, okay? I'll tell you something. You had a good time? Yeah? But I'll tell you something. It's not that easy. For us, it is absolutely nothing. But for women, it is actually very difficult. I didn't have a first-hand experience. I had a second-hand experience. But it was tough for me also just to see that, okay? Because somewhat it is inspired by a real story, okay? The thing is, जब आपके घर वाले बोलते हैं बच्चा कर लो इमीडिएटली शादी के बाद,
you're not in that situation, right? Mentally you're not in that situation, emotionally, financially you're not in that situation, right? तो आप सोचो जिंदगी वाले पैसा वैसा कमा ले, mentally stable हो जाए, दुनिया उनिया घूम ले, अपने आप को stable कर ले, तब जाके इन सब चीज़ों में पढ़ेंगे, बच्चा करेंगे, है ना? And it takes time. We got married a little late and then we took time to get stable also. So it took us time, okay? And we tried naturally for a long time, but then doctor suggested that you should go for IVF procedure. So we went for it, and it is not easy. मतलब हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है. लड़कियों के लिए it's a major turmoil on the body because you literally have to go through hormonal injections every day for 15 days into your body, so that your body is ready to conceive again, right? So that there are fertilized eggs again, because after a particular age, eggs start depleting, right? So that was the case, and we tried, and it didn't happen first time, and that was the moment when we were totally dejected. एकदम मतलब कि क्या हो गया हमारे साथ, क्योंकि हमने प्रॉपर्ली प्लान करके ट्राई करा था, एंड फिजिकली तो टैक्सिंग है ही, इमोशनली और ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ें, बिकॉज यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल एवरी डे, एंड द काइंड ऑफ पीपल, काइंड ऑफ केसेस यू सी ओवर देयर, और एक इन जनरल हार्मोनल अप एंड डाउन चल रहा होता है बॉडी के अंदर पूरा, ठीक है? तो यू वुड गो देयर, एंड आपको यकीन नहीं बताऊँ मतलब कैसे कैसे केसेस अभी भी हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं. वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स, देवर केसेस लाइक कि हमें लड़का करा दो. There are literally people who are coming. There are literally girls or daughter-in-laws who are coming over there, where in-laws are forcing them to go through IVF again and again because they are not able to conceive. एक लड़की मेरी 5th टाइम उसका चल रहा था. मतलब आप सोच रहे हो 5 बार वो सेम चीज़ अपने शरीर के अंदर डालना, हार्मोनल अप एंड डाउन पूरा करना बहुत डिफिकल्ट है. So we did it first time and it did not happen for us also. And हम तो पूरे एकदम वो हो गया कि हमने प्रॉपर प्लान करके करा, फिर भी नहीं हुआ. सब प्रिकॉशंस लेके करा, फिर भी नहीं हुआ. तो my wife was like, okay fine, I'll try it one more time. But if it doesn't happen second time, then we will adopt. And I was like, that's okay. In fact, we can do it first time also if you are fine. No, I want to try one more time at least. But if it doesn't happen second time, then we will adopt. But I think you have to be emotionally and mentally prepared for adoption. Right? It's not that easy to adopt, right? तो मैंने अपने एक दोस्त को बताया, उसका ऑलरेडी 4 साल का बच्चा है. मैंने कहा वो तो या तो कैरियर पर नहीं होगा तो अडॉप्ट करेंगे. तो पता है मेरे से क्या कहता? कह रहा भाई सीधा 4 साल का लेके आई हो. मैं ये डिस्कस करने आया हूँ यहाँ पे. मैंने कहा भाई इमोशंस नहीं होते कुछ? यार भाई उल्टी टट्टी धोने में सारे बह जाएंगे. मैं कहा ठीक है भाई, अगर बच्चे में भी कन्वीनियंस ही देखना है तो सीधे जाकर 14-15 साल का टीनेजर ना ले आओ. सोच रहे फर्स्ट जो बच्चा, पापा नमस्ते. नमस्ते पापा, ब्रेड लेके आऊँ क्या आपके लिए? अभी ब्रेड लेके आता हूँ, रुक जाओ जरा. I don't know man, but 100% credit to my wife. She did it second time also, and luckily it worked in our favor, and she finally conceived. Yeah. In fact, we have been recently blessed with a baby boy also, so it is all fine now. Yeah. The thing is, when it happens naturally, right? Then there are a lot of factors that are involved. But when doctors do it through IVF procedure, then they take the best eggs, and then they take the best sperms, and then they mix it. तो ये हमारा बेस्ट है. अब इसके बाद भी अगर इसने कॉमर्स ली तो मेरा मूड खराब हो जाएगा भाई साहब. That's my time guys. Thank you so much. You guys are absolutely wonderful. Thank you so much. I had a wonderful time performing for you guys. Sorry for doing longer show. I hope you guys enjoyed. One last thing I want to tell you. See, there's one joke in this where जो कि मेरी वाइफ बोलती है मत करा कर, पर आज कर देते हैं. उसने मेरे से बोला, मतलब जब हमने सेकंड टाइम करा ना, तो वी वर नॉट श्योर वेदर कब कराना है, कैसे कराना है. तो वी टुक टाइम फॉर इम्प्लांट. हमने इमीडिएटली नहीं कराया. सो बेसिकली यू कैन गेट इट फ्रोजन एट एम्ब्रियो स्टेज और स्पर्म एंड एग स्टेज ऑल्सो. आपको फ्रीज करा के रख सकते हो. वी गॉट इट फ्रोजन एट एम्ब्रियो स्टेज, राइट? तो उस टाइम हम बहुत सोच रहे थे करना है नहीं करना है, कब करना है, थोड़ा सोच के कर ले. डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे. 4-5 महीने वो फ्रोजन स्टेज पे था. तो पता नहीं यार उस टाइम पे पता मेरे को रात को एक बार सपना आता था कि पापा ठंड लग रही है, जल्दी करो भाई. That's what I'm guys. Thank you so much. You guys are absolutely wonderful. चाय बोलो चाय, चाय 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 बोलो चाय, चाय बोलो चाय, चाय बोलो चाय. कॉमिक्स नहीं, कॉमिक्स नहीं, राज कॉमिक्स. चाय बोलो चाय. कोल्ड ड्रिंक ठंडा चाय, कोल्ड ड्रिंक ठंडा चाय. उड़ल ये सिखा दो इसे. कोल्ड ड्रिंक ठंडा, लेमन, माजा, पेप्सी. आपको दिख नहीं रहा, जो मुझे यहाँ से दिख रहा है इसने थम्स अप यहाँ लगा रखी है. ये है यहाँ पे क्या एडवेंचर करना है आपको यार. यहाँ फंसा के बैठा हुआ है थम्स अप, और यहाँ पे फोन घुसाया हुआ है भाई. वाइब्रेशन अगर हो गई ना और कहीं आपको अच्छा लग गया तो आप डाउट में चले जाओगे यार. थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी करेंगे शो में, चलेगा आप लोगों को? है
ठीक है मैम, कोई आप आए हो एक्साइटेड आज घर से? आप फर्स्ट टाइम स्टैंड अप देख रहे हो, पहले आपने देखा है किसी को? ये मेरा फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है। ओ क्यों, तो आज आपका कैसे कैसे मूड बन गया कि चलो आज देखते हैं स्टैंड अप? वेले बैठे थे। वेले बैठे थे, ये भी बोल सकते थे कि आपके वीडियो अच्छे लगते हैं। तो लोग सोचा कि लाइव एक्सपीरियंस देख लें। खाली थे जी गौरव, खाली थे। आप आए हो कि ये इसके साथ आए हो? हाँ। ये कौन है? ये जायसवाल। अरे तुम्हारा रिश्ता क्या है इससे? ही इज योर ही इज योर बॉयफ्रेंड। भाई डर क्यों रहे हो आप? ऐसे पैनिक मत करो, रिलैक्स करो। आई एम नॉट वन ऑफ दोज कॉमेडियंस जो कि उल्टा बोलता है। आई जस्ट हैव अ नाइस कॉन्वर्सेशन विद, इफ एट ऑल यू वांट। कैन आई टॉक टू यू गाइस? व्हाट्स योर नेम? जनक। जनक। अरे महाराजा जनक। हम आपका नाम? ऋतु। ऋतु। ऋतु ऋतु। ऋतु मतलब? RUTU। मतलब ऋतु? ऋतु सीजन होता है? ऋतु सीजन को हिंदी में ऋतु बोलते हैं। ऋतु। पता था आपको ऋतु होता है? ऋतु तो कुछ नहीं है। ऋतु तो चलो फिर भी मैं कंफ्यूज था कि सुना है कि नहीं सुना। ऋत नहीं होता, ऋत भी होता है। ऋतु होता है ना, ऋत भी होता है। हाँ मतलब ऐसा ही कुछ होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना? मैं ही समझ लूँ। सही है भाई, ये अलग ही लकड़ फंसाने आई है मेरे। ये वाला माल चाहिए मेरे को। ये वाला माल चाहिए जो मैडम फूक के आए। अच्छा ये बोलना। भाई मुझे कुछ और ही लगा। मुझे लगा भाई इतना बैंड्रा में इतना कंफर्टेबल कैसे हो गया? भाई कह रहा है ये वाला माल मारो। भाई क्या बोल रहा? मेरी फट ही गई, क्या बोला है ये? इसके साथ ऋतु आई है, ऋतु सारे सीजन्स भूल गई मैं। ऋतु कह रही क्या बोल रहे हो? व्हाट इज दिस लैंग्वेज यू आर यूजिंग? कुछ माल भूख के नहीं है, शी इज जस्ट हैप्पी। सही है मैम। कब से हो जायसवाल और आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? हैं? ऑलमोस्ट 2 years। आप भाई कंफर्टेबल हो कि नहीं हो बताओ? मैं दोस्त ही हूँ यार आपका। आपको कौन ये लेके आई है क्या आपको? है ना, होता है। इसलिए ज्यादा हंस रही है। इसलिए ज्यादा हंस रही हैं। कैसे मिले आप दोनों? फ्रेंड्स की गैदरिंग में। डू यू स्टे इन मुंबई और यू आर हियर? No, I'm here for 2-3 days. 3 दिन के लिए आप इधर, उसमें से भी आप 1 दिन चुन के इधर ही पहुंच गए। भाई ने कितनी उम्मीदों से बुलाया था, मॉल बना। आपको क्या लग रहा है, इसका इधर आके सबके भीड़ में बैठने का मन है? चलो भाई 3 दिन का विंडो है, आओ भाई खत्म करो। वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। क्या क्वालिटीज अच्छी है? 2-3 क्वालिटी बताओ। Very sweet, Very very sweet. humble, and completely opposite to me. He's very calm. वो तो हमें पता चल गया है यहाँ पे सबको। तीसरा वाला तो आपका अनसेड ही था यहाँ पे, सभी को पता चल गया है। हाँ फिर? He's the best what I can have. Like अरे भैया, अरे भाई गौरव जायसवाल भाई क्या नशे करा के लाए हो? भाई इतना प्यार में पड़ी हुई है लड़की एकदम। इतने प्यार में मिलती है कोई? नहीं, मैं बातें करता हूँ ठीक, गौरव कोई था ही नहीं, यही है अब क्या। 3 साल से चल रहा है, हमारा चल रहा है। इनने भाई 4-5 क्वालिटी बैठे बैठे गिना दी, पता है? जायसवाल भाई आप क्वालिटी बताओ आप 3। She's sweet. She's sweet. She's caring. She's caring. And she's punctual. She's Perfect with timings. perfect with timing. जैसल भाई फैमिली फ्रेंडली बातें करो यहाँ पे। कितनी गंदी बातें करके तुम्हारा खसम। कह रही ही इज वेरी केयरिंग एंड ही इज वेरी काम। इसने तो भाई घर के राज खोल दिए पूरे। और अ परफेक्ट विद टाइमिंग। जिस दिन मेरा 2 मिनट, इनका 2 मिनट। जिस दिन मेरा 10 मिनट, इनका भी 10 मिनट। नहीं सही है यार, नाइस नाइस कपल यार। ऐसे कपल्स नहीं मिलते आजकल इतने प्यार वाले। नहीं ये देखो जैसे कि आप दोनों कपल हो, नहीं हो? सच बता दो। चल रही है बात, चल रही है ऐसा टाइप। टेल मी ऋतु, टेल मी, नो टेल मी। यू गाइस आर कपल ना? no.
You are. Maybe you don't know. नहीं, ये देखो, ये कपल है, मान के राजी नहीं है। ये तू है। किसको नहीं पता? अरे और भाई ये तो पूरी एक्सट्रोवर्ट है। ऋतु की फटकी क्या बोल रही है? What is this girl saying? मुझे ना इन दोनों को देख के याद आ गई, मेरे कॉलेज में ना पर दो लड़कियों की लड़ाई हो गई थी, कैट फाइट हुई थी, प्रॉपर कैट फाइट। तो एक तो पूरी भाई एकदम वो पंजाब से थी, पता पूरी एकदम पंजाब की नहीं तो जटनी, और दूसरी हमारे दिल्ली की थी, डीपीएस वगैरह की। तो दोनों में कुछ किसी बात पे लड़ाई, भाई डीपीएस वाली व्हाट आर यू डूइंग, पंजाब वाली ने खींच के चाटा, चल कह रही कुत्ती तेरे को मार मार के जिला दूंगी मैं। डीपीएस वाली व्हाट इज दिस बिच इज सेइंग समथिंग टू मी, दिस बिच इज सेइंग समथिंग। मेरे ऐसी फीलिंग आ गई मेरे को एकदम। ऐसे नहीं हो आप भी कलेशन हो हैं? हाँ कैट फाइट हो जाएगा, मजा आ जाएगा, पता सबका एंटरटेनमेंट भाई यही है, शो यही बढ़िया है, कॉमेडी वॉमेडी बंद करो, ये सब बढ़िया है। ये यार ये सब तो करते रहेंगे, थोड़ा जोक सुनाओ आप लोगों को, चलेगा? नहीं ये सब तो क्या है यार, ये सब बातें होती रहेंगी। मैं यू नो आई एम क्या था जोक ही भूल गया। इतना हंसी मजाक में घुस गया, चुटकुला ही भूल गया भाई। कोई बात नहीं, फिर से। देखो मेरी बात, अभी तक तो अब देखो मेरी बात सुनो, अभी तक तो मैंने कुछ बोला नहीं था, है ना? तो अब अगर आपने मेरे को इंटरप्ट करा तो मैं एक राज खोलने वाला हूँ जायसवाल भाई का। और जायसवाल भाई वो राज मुझे दिख रहा है यहाँ से, मैं आपको क्या बताऊँ। जो जायसवाल भाई ने इनके गर्दन पे कामिंग नेचर दिखाया है ना, जायसवाल की बढ़ गया रहा भाई, बाल आगे क्यों? करेक्ट विद टाइमिंग है। अब मैं क्या करूं, मेरी नजर गई तो मैं क्या करूं? इट्स नॉट माय फॉल्ट, है ना? एकदम पूरा मैं डिस्ट्रैक्ट ही हो गया, मेरी आंखों में जायसवाल की पूरी इमेज ही चेंज हो गई, पता है? मुझे ना बड़ा सीधा सा लड़का है, कुछ नहीं भाई, जल्दी आस्ते आस्ते उसके बाल पीछे मैंने कहा भाई जायसवाल ये तुम्हारा ही है क्या? अरे बाप रे बाप, भगवान क्या दिखा दिया, मैं गंदा इंसान हूँ। सोच रहा हूँ बेचारा लड़का घर से वरमाला लेके निकला था ऑफिस के। तुम्हारे घर पे फोन करके बताऊं? अंकल जायसवाल जी से रात घूम रही है आपकी बेटी, पूरी गर्दन लाल करके बैठ गई। हक दिया मेरे चुटकुले पे बहन पूरा। अरे भाई बर्बाद हो गई है तो बर्बाद। क्या हुआ? हाँ हाँ पूरा घर का ही माहौल तो है ये, फैमिली फंक्शन ही है क्या ये? और जायसवाल भाई आपने क्या काटा है भाई, कसम से यार। भाई पूरा भाई थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए यार, लड़की को बार बार घूमना है हर जगह। भाई आपने देखा, आपको दिखा नहीं? मेरे को भाई मेरे ये क्या कर दिया भाई, एक होता है लाल, इसने कॉपर कलर कर दिया, कॉपर ही कर दिया भाई पूरा उसका। बस अब 15 सेकंड में वो भारी आ रही थी स्किन बेचारी की एकदम। आगे वापस बताना नहीं, चुप। मैंने कुछ नहीं बोला। होता है यूथ में, कितने साल के छोटे छोटे लग रहा है लोग, 22-23 साल, 24 ना? हाँ भाई इसमें तो एकदम, इसमें तो ऐसे होते ना हार्मोन्स, वहां से बंदा भर के निकलता, बस पकड़ लिया है, तैयार हो जाओ। कब जाना है? कल चले जाए। कल मत जाओ। कब पेरेंट्स के याद रहते हो? पेरेंट्स के याद नहीं रहते ना? हाँ फिर जाओ जाओ। वरना 2 दिन चुन्नी ऐसे बाहर के
टेम्परेचर चल रहा है 42 डिग्री है। मुझे तो ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, ठंड। आपको सही डिसीजन लगा कॉमेडी शो में आना? मज़ा आया ना? आता है मज़ा यार कॉमेडी शो में। एनीवेज, आप लोग जीवन साथी से मिले कैसे? आप कितने से मिले थे? जीवन साथी के थ्रू फर्स्ट इनसे मिले। क्या नाम है मैम आपका? भाविका। भाई आप? प्रणय। भाविका आप कितने से मिले? फर्स्ट। तुम में से एक ने तो झूठ बोला है या फिर दोनों नहीं। एंड नाउ दे हैव टू कंटिन्यू इट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। कितनी डेट्स पे गए थे आप लोग? हाँ, डेट्स ही होती हैं वो भी। ओके। हर डेट का मतलब ये नहीं होता निशान लेके आना होता है, ठीक है? डेट, व्हाट इज डेट गौरव? डेट तो वही जबकि कहा जाए किसके मैं नाखून मारूं। वायलेंस के बिना कैसा डेट गौरव? छोटे छोटे राजकुंद्रा घूम रहे हैं नहीं? हेलो, नमस्ते। नमस्ते चाई जी, कैसे हैं? अरे रुक जाओ, पहले इतने जोश में क्यों हो? देख तो लो कॉमेडियन है कैसा। कहीं बीच में रियलाइज हो गलत लग गया क्या पैसा? 30 पाउंड चला गया है। हाँ भाई 35। ओ यार भाई, हाई एनर्जी में निकलो यार तुम आज एकदम। मुझे लग रहा है ये शो के बाद तुम सब बाहर निकलोगे फिरंगियों की फटने वाली है। अरे ये रिवर्स राज हो रहा है क्या? क्या चल रहा है यहाँ पे इमिग्रेशन में? 10,000 बंदे आ रहे हैं, क्लियर करने वाले 4। हाँ भाई, वो इमिग्रेशन की लाइन देखी आपने? उसमें दोस्तियां बन गई है। 8-8 चक्कर मारने पड़ रहे। हेलो भैया नमस्ते। फिर इधर मारे, फिर दिख रहा हाँ भैया नमस्ते। तीसरी बार कह रहा जाना है, जब अपना जा, मुझे नहीं बात करनी, तेरे से जा। भाई इतनी 8-8 लाइनें चल रही है, राउंड मेज चल रहा है पूरा। यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। क्या चल? एक बंदा मूंगफली नहीं बेच रहा वहां पे। इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वहां मूंगफली बेचने की। यार टिंडर मैच हो रहे, पता है आपको उस लाइन में? कसम से टिंडर मैच हो रहा है। मैं एंड में था, एक लड़की का टिंडर मैच हो गया। लड़का आगे बैठा हुआ था शायद, एकदम फ्रंट रो पे था वो। तो उसने कहा इफ यू लेट मी कम इन फ्रंट आई लेट यू कम इनसाइड मी। इस बात से लड़के ही खुश हुए हैं क्योंकि लड़कियों को पता है ये झूठ है। ऐसा कहीं नहीं होता। इसकी तो आंखें ही खुल गई सेकंड रो वाली की, पता है? आई लेट यू कम इनसाइड मी। व्हाट इज दिस? नेवर एक्सपीरियंस। You're with, is it like one family? Yeah. 2 of you together? You're with this guy? He's a friend. ठीक है भाई, कोई नहीं हो। Not a Tinder? कहाँ से आए हो? मेरा गंदा टी निकला। Not a Tinder में, Tinder। इनकी वजह से हमारा एक्सेंट बदलाना, पता है? हम क्या चल रहा है? रिसेशन चल रहा है अभी आज। रिसेशन, मॉर्गेज तुम्हारे डबल हो गए। मैंने सुना बहुत महंगा हो गया। भिखारी नाइकी में घूम रहे। ये कैसा रिसेशन है? भिखारी नाइकी में घूम रहा है। हाँ भाई, भिखारी एयर जॉर्डन में गए। ब्रो यू गॉट सम मनी ब्रो। ओ भैया यार, ये क्यों मांग रहा है वैसे? Bro, you got some cash? You got some cash, bro? No, bro, not carrying cash. You want a tap, bro? I got money. मैं कह रहा हूँ यार, you know, all my life I've stayed in West Delhi, but now I don't stay in West. Now I stay in South of South Delhi. That is Faridabad. You guys know what is Faridabad? हमारे वहाँ का रेडिंग।
बारी आती है फिर 20 मिनट और हो जाता है। सर क्या सुसु, जाओ जो बियर पियो मुंह तो बहन यही। 5 मिनट हुए नहीं, शो शुरू हुए उठ करके अरे कौन बेज कलर की पैंट पहन के आया नहीं है। एक तो लड़के लोग लाइट कलर की पैंट क्यों पहनते हैं भाई, तुम्हारा हल्का मूत निकलेगा पूरा अमीबा की तरह फैलेगा। बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए लाइट पैंट, हमेशा पहनो, डार्क पहनो, पता ही नहीं चल रहा है। मेरा तो नहीं पता चल रहा। मैं आया हफ्ता हो गया, विंबलडन चल रहा है यहाँ पे, वो मेरी वाइफ रिसेंटली बोल रही विंबलडन देखने चलते हैं। मैं कहा तुम्हारे खाना में चिड़ी चिक्का खेला किसी ने? विंबलडन देखेंगे, बड़ा महंगा है भाई। See guys, I've been married for about 6 years now. I've been married. Yeah, Shreya, I know she's my wife. I know. मेरे को मैं भूल ही गया था एकदम, पता है ये मेरी बीवी भी है। देखो जिसको नहीं समझ आ रहा मैं बता दूं क्या सीन है ये। I'll tell you क्या है ना ये। देखो हाँ ब्लॉग, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हैव सीन माय ब्लॉग्स एंड आई विल टेल यू व्हाट इज ब्लॉग्स इन दिस जोक। आई विल टेल यू व्हाट इज ब्लॉग। क्या है ना ये एकदम, ये फैंस वगैरह नहीं है, ये दोस्त ही है, पता है। ये तो इन्होंने अपनी तरफ से चढ़ावा दिया है 35 पाउंड का। ये टिकट नहीं है, लिफाफा है रिसेप्शन का मेरे पास। इनको सब पता है। बाकी कमेडियन से लोग मिलते हैं ना, बिकॉज आई मेक व्लॉग्स आल्सो राइट। तो बाकी कमेडियन से लोग मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? ओह लव योर फैन, लव योर वर्क मैन, लव योर दिस वीडियो। मेरे से पता क्या मिलते हैं? अरे तुम्हारे वो बाथरूम का पाइप फट गया था, ठीक हो गया? भाई मैं कुछ और काम भी करता हूँ भाई, मैं बाथरूम का पाइप भी ठीक नहीं कराता सिर्फ यार। बताओ एनी कपल्स हियर लाइक 2 years 3 years 4 years व्हाटएवर? मोर देन इट्स ओके मैम, डोंट बी अपसेट अबाउट इट, टेल मी डू यू गाइस फाइट? व्हाट्स योर नेम? हरप्रीत। एंड भाई हरप्रीत जसप्रीत, ये क्या है? व्हाट इज दिस स्टीरियोटाइप है? व्हाट इज? हाँ ठीक है पंजाबी ठीक है यार। क्या मुझे पंजाबी गुजराती कुछ समझ नहीं आता। मैं हूँ मतलब कपूर पंजाबी, पर मेरे हमारे घर में माहौल ही नहीं था। मैं अभी कॉमेडी में आके देखा पंजाबी वाली वो खरी हो, मैंने कहा हमारे बाप की फटी रहती थी क्या? भाई मेरा बाप एकदम 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 शरीफ इंसान नहीं होता। बेटा लड़ाई नहीं करनी किसी से, सबको सॉरी बोल के घर आया करो दिन में। मेरे को नहीं समझ आता है सब। ठीक है हरप्रीत एंड जसप्रीत, किस बात पे लड़ते हो बताओ, स्पेसिफिक रीजन देना। ईगो होती है मेनली। नहीं इतना नहीं बच चाहिए मेरे को, इतना मेरे को ऐसे डीप रीजन नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिक रीजन चाहिए। क्या है? गोल्फ? गोल्फ पे क्या लड़ाई हो रही है? हर रोज जाता है। हाँ हर रोज जाता है। आप पक्का भाई गोल्फ खेलते हो? क्योंकि इन मैम की आवाज जरूर कंचे खेलने वाली लग रही है। गोल्फ खेलते हो भाई? अभी कितनी अमीर प्रॉब्लम नहीं है ये। देखो वर्क फोर्स को आइडिया ही नहीं है व्हाट इज हैपनिंग यार। हु इज प्लेइंग गोल्फ? मैं जा पूछ के जाया करो भाई, क्यों? व्हाई डू यू गो फॉर गोल्फ एवरी डे? यू लाइक टू पुट द बॉल इन द होल। कह रहा घर में मौका नहीं मिल रहा, वहीं कर लो। पता नहीं मैं सब कुछ गंदा कैसे बना देता हूँ। Rahul and Shika, what is the specific reason on which you fight? She doesn't like London, so she wants to go back. She wants to go where she doesn't like London. Shika, why don't you like London? Where are you from, Shika? From India. No. अरे ओ प्रीति सबरवाल, ठीक है। ये चकते पिक्चर की शूटिंग नहीं हो रही है और ये कबीर सिंह नहीं है, ठीक है? कबीर खान, सॉरी जो भी था उसमें। हाँ मुझे बेसिक आंसर आपको समझ आ गया था मैंने क्या पूछा है। बताओ शिखा जी क्या रीजन है? शिखा फ्रॉम इंडिया, टेल मी वेयर इन इंडिया यू फ्रॉम इफ आई मे आस्क? मैंने मेलबर्न में रहे हैं तो मुझे मेलबर्न जाना पड़ता है। आप अच्छा ओह, मुझे लगा मिट्टी की याद आ रही है। इसको तो ग्रेट ओशन रोड ज्यादा पसंद है। जी का वैसे कहाँ से हो आप, मतलब इंडिया में कहाँ से? हरियाणा। और इससे पूछूंगा ना मैं, ये गुड़गांव से भी नहीं निकलेगी, मुझे पता है ना।
ये भाई हिसार पड़ता अपना गौरव भाई, हिसार से ही। अरे हिसार में बर्गर किंग खुल गया है, हल्के में ले रहे हो क्या? हिसार को तगड़ी जगह बन गई, हाईवे निकल रहा है वहां से, छोड़ो मेलबर्न लंदन वगैरह। थोड़ा ओवर टाइम करेंगे, चलेगा शो, मजा आ रहा है आज तो। नहीं फील बन रही है थोड़ी, अच्छी ऑडियंस आई है, तसल्ली से जोक सुन रहे हैं। गुड़गांव में भाई शो पे लड़ाई हो जाती है भाई कसम से। एक बार सिर्फ इस बात पर लड़ाई हुई कि सामने वाला बंदा लंबा था, उसको देख दो हट जाना, हट जाना, उन्हें घूम के दमादम मारे। क्या करने का मन कर रहे हैं आप? तो ये घर से भंडों के जो आते हैं ना, क्यों मन करे? आर यू लाइक वन ऑफ द वायलेंट पर्सन इन द रूम? कौन लंबे हैं? ओ ये द सीन इज बिल्डिंग अप ब्रो। करे कलेश करते हैं यहीं पे आज, करते दोनों के वीजा वापस। मजेदार मजेदार आगरा में पड़े यार, कलेश हो गया था, वापस आना पड़ गया। एक सेकंड, आपने छोटे लोगों को क्या बोला? एक सेकंड, एक्सक्यूज मी, आर वी नॉट ह्यूमन बीइंग्स? डोंट वी डिजर्व हैप्पीनेस? अरे भाई यार मैं पता अच्छा खासा लंबा हो रहा था, वो मेरी 9th में बयान में तो लंबी हाइट खींची झटके से एकदम, चाची के घर गया, ओए मुंडा कितना लंबा हो गया भाई। वो दिन और आज सेम। ये मेरी चाची ने रोकी मेरी हाइट, पता अपने लड़के को लंबा करने के लिए, मुझे पता है ना उनका। एक लड़की यहाँ से साड़ी में गई थी ना अभी, साड़ी पहन के, पूरा भाई भारतीय सभ्यता को आज हम लेके चले। आज हमारे भारत का एक इवेंट है। भारत के इवेंट में हेलो मैम, हाँ जी नमस्ते नमस्ते जी, आइए आइए, चाय जी आइए, बैठो। अरे भाई कितनी प्यारी साड़ी है। अरे नहीं मैम ठीक है, बहुत अच्छी, वेरी नाइस साड़ी, वेरी नाइस, बिल्कुल अच्छी साड़ी। 90s में बहुत अच्छी लगती थी ये वाली। अभी अच्छी कांजीवरम आ गई है हमारे वहाँ। नहीं मैम बहुत बहुत सुंदर साड़ी है मैम एकदम। क्या हुआ क्या हुआ, क्या बातें हो रही है उधर? पानी पानी ये ले लो एक बॉटल, तो ये ले लो, कोई बात। शेयरिंग इज केयरिंग नहीं, मेरे को बस ये नीचे उठ के कोई ना जाए। उधर उधर दे दो मैम को, कोई नहीं। थैंक यू, यू वेलकम। 3 पाउंड्स। टैप करा लो इनसे। भाई पैसे खर्चना एकदम ढूंढ ढूंढ करके निकले जा रहे भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लंदन प्रॉफिटेबल तो नहीं है, मैं बता रहा हूँ, प्रॉफिटेबल तो गुड़गांव ही है मेरे लिए। यहाँ जो कमाया नहीं उतना तो उड़ चुका है, अभी मेरे 10 दिन और बचे हैं। एक तो मैं जब से यहाँ आया हूँ ना, थैंक यू सो मच, यू गाइस आर सो नाइस, लॉट ऑफ पीपल आर मैसेजिंग अस, घर आओ इंडियन खाना खाओ, है ना, हाँ दाल चावल खाओ, राजमा चावल खाओ। अबे तुम खाओ, हम रोज खाते हैं यार, हमें नहीं चाहिए बटर पनीर दाल चावल। आई वॉन्ट कॉफी एंड क्रोसॉन एवरी डे, मुझे नहीं चाहिए ऐसा फालतू। क्या फ्रांस जाना पड़ेगा? नहीं यहाँ भी है सर। तो आपको लग रहा है मैं बस एक हल्के से स्वाद के लिए फ्रांस चले जाऊंगा? वैसे होता तो दिल्ली में भी है, पर वहां मन से नहीं मानता खाने। जब मैदा खाना ही है तो भटूरे ही खा लो। मजा आ रहा है, पता है आज ईगो बूस्टिंग वाला शो है मेरा। मुझे लग नहीं रहा इतना फनी तो मैं हूं। तुम अच्छे मूड में आए हो, मत बोला कर पूछड़ी। Okay guys, so that was the end of the video. I hope you liked the video. Plus India, USA, Canada, UK और स्कैंडिनेविया का टूर 2024 ऑलरेडी लाइव है। सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में है। भाई की एडिट कर करके पड़ गई आज, पर मजा आ गया, वीडियो खत्म कर दिया हमने रात में। So if you like the video then do subscribe to the channel. Plus सारी टिकट डिटेल्स आर हियर. See you.